السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ واذکروا اللہ، اور تم یاد کرو اللہ کو، ذکر کرو اللہ کا، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دن تم اللہ کا ذکر کرو۔ فمن تعجل فی یومین، فمن تعجل، پس جس نے جلدی کی، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، تو نہیں ہے گناہ اس پر۔ ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی، جو مؤخر ہوا، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، جو ڈر گیا، جس نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم اس اللہ کی طرف تحشرون، جمع کیے جاؤ گے۔ اس آیت کے اندر ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، 11، 12، 13 ذوالحجہ۔ ذوالحجہ کی 11، 12، 13 کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ چند دن ہیں ایام معدودات، یعنی گنتی کے چند دن ہیں، ان میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اور ان میں ذکر الہی یعنی باواز بلند تکبیرات پڑھی جائیں۔ کینکریاں مارتے وقت ہر کینکری کے ساتھ تکبیر پڑھنا مسنون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے وللہ الحمد، تو یہ جو تکبیر ہے یہ پڑھنا ہر کینکری کے ساتھ یہ مسنون ہے۔ اور اسی طرح تعجل فی یومین، تعجل فی یومین سے مراد کینکریاں 3 دن میں افضل ہے، ٹھیک ہے، 3 دن جو ہے کینکریاں مارنا یہ افضل ہے۔ لیکن جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، کوئی اگر 2 دن کینکریاں مار کر وہ واپس آ جاتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ تو اگر کوئی 3 دن یعنی کہ وہ 3 دن کر لیتا ہے تو اس پہ بھی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جو ہے 2 دن کر کے کینکریاں مار کے آ جاتا ہے تو اس پر بھی گناہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ تحشرون، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يُعْجِبُكَ، بعض وہ ہیں، يُعْجِبُكَ، جو تعجب میں ڈال دے آپ کو، قَوْلُهُ، اس کی بات۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں یعنی آپ کو وہ تعجب میں ڈال دیتی ہے یا خوش کر دیتی ہیں۔ یعجبک، تمہیں یعنی کہ خوش کر دیتی ہیں، بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں آپ کو۔ تو ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض، میں جو یعجبک قولہ، جس کی جو بات ہے وہ آپ کو اچھی لگتی ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اعلیٰ، اس پر، ما فی قلبی، جو اس کے دل میں ہے، جو اس کے دل میں باتیں ہیں اس پر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، یعنی کہ اللہ کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو ہے، سخت قسم کا جھگڑالو بندہ ہے۔ لیکن وہ اس کی باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، بھلی لگتی ہیں، اور آپ کو تعجب کے اندر بھی ڈال دیتی ہیں وہ باتیں۔ تو اس آیت سے مراد ہر وہ منافق شخص ہے، اس آیت سے مراد ہر وہ منافق شخص ہے جس میں یہ خصلتیں موجود ہوں، جس کے اندر یہ خصلتیں موجود ہوں۔ پہلی یہ کہ دنیا کا علم ہو، آخرت کا بالکل علم نہ ہو، سارے کا سارا دنیا کا علم ہو، آخرت کا اس کے پاس بالکل علم نہ ہو، یہ پہلی خصلت ہے منافق۔ دوسری، اللہ کی قسم اٹھا کر اپنے ایمان و اخلاص کا یقین دلاتا ہوں، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہے کہ میری بات کا یقین کیجئے، میں مخلص ہوں، میں اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں، یہ وہ اپنے ایمان اور اخلاص کا یقین دلا رہے ہیں قسم اٹھا کر۔ تیسرا یہ کہ وہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے،
तीसरी खसलत उसके अंदर ये होती है कि वो सख्त किस्म का झगड़ालू होता है। चौथी खसलत उसके अंदर ये होती है कि वो तखरीबी कार्रवाइयों के जरिए से जमीन में फसाद और जानो माल को बर्बाद करने में मशगूल हो जाता है। तखरीबी कार्रवाइयों के जरिए से जमीन में फसाद और मालो जान को बर्बाद करने में मशगूल हो जाता है। पांचवी खसलत उसके अंदर ये है कि जब अल्लाह से डरने का कहा जाता है उसको, तो उसकी इज्जत और गुरूर नफ्स, नफ्स का गुरूर, उसके जान का गुरूर, उसका अपना गुरूर उसे गुनाह में फंसाए रखता है। जब भी उसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, तो उसको अपनी इज्जत और अपना जो नफ्स का गुरूर है वो उसको गुनाह पर फंसाए रखता है। वो उसको कहता है नहीं नहीं गुनाह करता रहे, करता रहे। तो ये खसलतें जिसके अंदर भी मौजूद हैं तो वो मुनाफिक है, और उसके बारे में इस आयत के अंदर कहा गया है कि ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि लियुफ्सिद फीहा व युहलिकल हर्स वन नस्ल। वइज़ा तवल्ला, वइज़ा तवल्ला, और जब वो लौट कर जाता है, वइज़ा और जब, तवल्ला वो लौट कर जाता है, सआ फिल अर्ज़ि तो कोशिश करता है जमीन में। क्या कोशिश करता है? लियुफ्सिदा फीहा ताकि वो फसाद करे, उसमें जमीन में फसाद करे। वयुहलिकल हर्स वन नस्ल, वयुहलिकल हर्स वन नस्ल, और वो हलाक कर दे खेती को, वन नस्ल और नस्ल, नस्ल को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, और खेती को तबाह बर्बाद कर दे। जैसे मैंने पिछली आयत की ही वजाहत में बता दिया था कि जब वो वापस जाता है तो उसके अंदर जो है ना, उसकी ये एक खसलत है कि वो जो है जमीन के अंदर फसाद बर्पा करता है और जानो माल को बर्बाद करने की में बर्बाद करने में मशगूल हो जाता है। ये उसकी एक खसलत है मुनाफिक की। तो ये खसलत इसके अंदर बयान हुई है कि जब वो वापस जाता है आपके पास आके तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन जब वो वापस जाता है तो वो कोशिश करता है कि जमीन के अंदर फसाद बर्पा हो जाए और खेती और नस्लें जो हैं, नस्लें लोगों की नस्लें दर नस्लें वो तबाह बर्बाद हो जाए। तो वो हलाक करने की कोशिश करता है। वयुहलिका और हलाक कर दे अलहरसा खेती को, नस्ल और नस्ल को। वल्लाहु और अल्लाह ताला ला युहिब्बुल फसाद नहीं पसंद करते फसादी को। फसादी बंदे को अल्लाह ताला फसाद बर्पा करने वाले को पसंद नहीं करते। अगली आयत में फरमाया है वइज़ा क़ील लहु तक़िल्लाह अखज़तहुल इज़्ज़तु। ये सारी खसलतें जो मैंने पहली आयत की तशरीह में बयान कर दी हैं, तो ये सारी वही बयान हो रही हैं। वइज़ा क़ील लहु तक़िल्लाह, जब कहा जाता है उसके लिए इत्तक़िल्लाह, अल्लाह ताला से डर, अल्लाह ताला से डर, जब ये हुक्म दिया जाता है, कहा जाता है उसके लिए इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, अखज़तहुल इज़्ज़तु पकड़ लेती है उसको इज्जत, उसको इज्जत पकड़ लेती है। तो यहाँ इज्जत का मतलब जो है वो गुरूर और अनानियत है। यहाँ इज्जत का मतलब गुरूर और अनानियत, अपनी अपने नफ्स की अना है जो उसको पकड़ लेती है। बिल इस्मी गुनाह के साथ, गुनाह के साथ उसको पकड़ लेती है। अखज़त वल इज्जत बिल इस्मी पकड़ लेती है उसको इज्जत गुनाह के साथ, यानी पकड़ लेता है उसको गुरूर गुनाह के साथ, पकड़ लेती है उसको अनानियत गुनाह के साथ। तो यानी उसका अना, उसकी अना और उसका जो गुरूर है वो गुनाह के साथ पकड़ लेता है उसको, यानी कि वो गुनाह पर उसको फंसाए रखता है। फहस्बुहु जहन्नम, बस काफी है उसको जहन्नम। वला बिसल मिहाद, अलबत्ता बुरा है वो जगह जो है वो बहुत बुरी है, वो ठिकाना जो है वो बहुत बुरा है। वला बिसल मिहाद, अलबत्ता बुरा ठिकाना है वो। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिनन नासी मन यशरी नफ्सहु बितिगा मरज़ातिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं वामिनन नासी, और लोगों में से, लोगों में से बास, मैं यशरी नफ्सहू, मैं यशरी नफ्सहू जो बेच डालता है अपने नफ्स को। लोगों में से एक तो मुनाफा के पीछे खसलतें बयान कर दी हैं, अब मोमिन की खसलतें अल्लाह ताला यहाँ बयान करे। वामिनन नासी, और लोगों में से, मैं यशरी नफ्सहू जो बेच डालता है नफ्सहू अपने नफ्स को, इब्तिगा मरज़ातिल्लाह अल्लाह की रजा की तलाश में, अल्लाह की रजा की तलाश में जो बेच डालता है अपने नफ्स को, अल्लाह ताला की रजामंदी की तलब में, तलाश में वो अपने नफ्स को बेच डालता है। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ बहुत बड़ी मेहरबानी करने वाले हैं। अल्लाह ताला, वल्लाहु अल्लाह ताला रऊफुन बहुत बड़ी मेहरबानी करने वाले, बिल इबाद अपने बंदों के साथ, यानी कि वो अपने नफ्स की परवाह नहीं करता,
वो अपने नफ्स की परवाह नहीं करता, बल्कि वो अल्लाह ताला की रजा की परवाह करता है। वो अपने नफ्स की नहीं मानता, वो अल्लाह की मानता है। तो इस आयत के अव्वलीन मिसदाक, इस आयत के अव्वलीन मिसदाक वो मुहाजिर साहबा किराम हैं जो अपनी जान खतरे में डालकर और अपने माल को छोड़कर मक्का से मदीना आए। अव्वलीन मुहाजिर साहबा किराम जो अपनी जान खतरे में डालकर अपना माल छोड़ दिया, उन्होंने मक्का के अंदर और मदीना की तरफ हिजरत की। बाज़ रिवायात में इस आयत का सबब नुज़ूल हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करार दिया गया है। बाज़ रिवायात के मुताबिक इस आयत का सबब नुज़ूल हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करार दिया गया है, जो कुरैश के रोकने पर सारा माल उनके हवाले करके हिजरत कर गए। कुरैश ने रोका कि जनाब तुम नहीं जा सकते, फिर माल मांगा, तो जब माल मांगा तो उन्होंने अपना सारे का सारा माल, अमीर आदमी थे, सारे का सारा माल उनको देकर वो हिजरत मदीना उन्होंने की। तो बाद रिवायात के अंदर इसका सबब नुज़ूल उसको करार दिया गया। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो, उदखुलू तुम दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्मि इस्लाम के अंदर, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, काफ़्फ़ा मुकम्मल तौर पर। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और ना तुम पैरवी करो खुतुवाति शैतान, शैतान के कदमों की, उसकी पैरवी ना करो, शैतान के पीछे ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक तुम्हारे लिए वो वाज़ेह दुश्मन है। तो इसके अंदर कहा गया है कि यानी कि ये नहीं है कि तुम इस्लाम के अंदर ये इस्लाम तो ले आए हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद अपनी मनमर्जी की है, बल्कि सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। यानी कि अपने ऊपर इस्लाम को नाफिज कर लो, अपना 5-6 फुट का जो वजूद है इसके अंदर पूरे इस्लाम को नाफिज कर लो, इसके ऊपर इस्लाम को नाफिज कर लो। सबसे पहला जो है सबसे बड़ा जिहाद वो अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद है, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद है। अपने नफ्स की नहीं माननी, हमने उसकी माननी है जिसने हमारे नफ्स को बनाया है, हमारे जिस्म को बनाया है, हमारी बॉडी को बनाया है और इसकी रूहानी और जिस्मानी गजा का बंदोबस्त किया है, हमने उसकी बात माननी है। जो इस्लाम के अंदर ये नहीं कि जो जो दिल को अच्छा लगा वो मान लिया और जो दिल को अच्छा नहीं लगा वो छोड़ दिया, जो आसान लगा वो मान लिया, जो थोड़ा सा मुश्किल लगा वो छोड़ दिया। यानी अपने दिल, ये मेरे दिल ने कहा तो मैंने ये अच्छा काम कर लिया, मेरे दिल ने कहा मैंने ये बुरा काम कर लिया, तो ये गलत है। बल्कि उदखुलू फी सिल्म कहा, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम के साए के नीचे आ जाओ, पूरे के पूरे पूरा अमल करना है आपने और शैतान के कदमों की पैरवी नहीं करनी। और ये बता दिया कि सबसे वाज़ेह और बड़ा दुश्मन जो तुम्हारा है वो शैतान। अब एक दुश्मन के पता चल जाने के बाद भी अगर बंदा उसकी पैरवी करे तो ये उसकी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। एक बंदे को पता है कि ये मेरा दुश्मन है और अल्लाह ताला ने बता भी दिया, बार बार कहा ये तुम्हारा वाज़ेह दुश्मन है, इससे बच के रहना। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। फ़इन ज़ललतुम, अगर तुम फिसल गए, फ़इन ज़ललतुम, बस अगर तुम फिसल गए, डगमगा गए, मिन बादी इसके बाद, किसके बाद, मा जाअतकुमुल बय्यिनात, जो आ गए तुम्हारे पास, अल बय्यिनात दलाइल, दलाइल आ गए आपके पास, दलीलें आ गई आपके पास, वाज़े अहकाम आ गए आपके पास। वाज़े अहकाम दलीलें दलाइल आ जाने के बाद अगर तुम फिसल गए, फ़अलमू बस तुम जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुन गालिब है, गलबे वाला है, हकीमुन हिकमत वाला है। वालम फ़अलमू, और तुम जान लो, फ़अलमू बस तुम जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुन गालिब है, हकीम हिकमत वाला है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, हल यंजुरूना इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिन, हल यंजुरूना, क्या वो इंतजार करते हैं, क्या वो इंतजार करते हैं, या इसका हम ये तर्जुमा करते हैं, हल यंजुरूना, नहीं वो इंतजार करते, इल्ला मगर, अन यअतियहुमुल्लाहु, ये कि वो आ जाए उनके पास अल्लाह ताला, फी ज़ुललिन मिनल गमामी, फी ज़ुललिन साए में, मिनल गमाम बादल, बादलों के साए में आ जाए उनके पास अल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनके पास बादलों के साए में आ जाए। वल मलाइका, तो फरिश्ते आ जाएं, व कुज़ी अल अम्र, और काम इंतहा तक पहुंचा दिया जाए, व कुज़ी अल अम्र, और फैसला कर दिया जाए, यानी मामलात का फैसला कर दिया जाए, काम इंतहा तक पहुंचा दिया जाए, यानी मामलात का फैसला कर दिया जाए। व इलल्लाहि, और अल्लाह की तरफ, तुरजाउल उमूर, तमाम काम लुटाए जाते हैं। व इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ, तुरजाउ लुटाए जाते हैं, अल उमूर तमाम काम,
तमाम काम अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नहीं वो इंतजार करते, यानी कि वो तो सिर्फ इस बात का इंतजार करते हैं कि अन यअतियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमाम, यानी कि अल्लाह ताला बादलों के साए में उनके पास आ जाए, फरिश्ते उनके पास आ जाए और तमाम मामलात का जो है वो फैसला कर दिया जाए। तो ये तो क्यामत का मंजर है। क्यामत का मंजर जो है वो है, वो कहते हैं कि क्या ये तो क्यामत का दिन होगा ना इस तरह। तो इसका मतलब ये, एक तो ये है कि वो क्यामत बर्पा होने का इंतजार कर रहे हैं। एक इसका मतलब ये है कि वो क्यामत बर्पा होने का इंतजार कर, क्योंकि अल्लाह ताला तो क्यामत वाले दिन आएंगे ना सामने। एक इसका मतलब ये है कि वो क्यामत बर्पा होने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा ये है कि वो ये चाहते हैं कि फरिश्ते जो है ना उनके सामने जलवा फरोज हो, अल्लाह ताला बादलों के साए में उनके सामने आए, फैसला चुकाएं, तब वो ईमान लाएंगे। लेकिन ऐसा इस्लाम काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कबूल इस्लाम में ताखीर मत करो, इसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। इस्लाम को कबूल करने में ताखीर नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला के अहकामात को मानने में ताखीर नहीं करनी चाहिए, बल्कि फौरन इस्लाम कबूल करके अल्लाह ताला के अहकामात को फौरन जो है वो मान लेना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि अगर आप ठीक है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन इसके बाद हम कहें कि चले जी नमाजें फिर शुरू करेंगे, रोजे अगले साल से रखेंगे, ज़कात बाद में देंगे, तो हमें अहकामात में ताखीर भी नहीं करनी चाहिए, फौरन जो है अहकामात पर अमल करना शुरू कर देना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।